भाई कोई से हमजा जिया को बता दे, ये अपनी आईडी लिखेगा तो ये एंटर होगा, ये नहीं लिखेगा तो एंटर नहीं हो सकता क्लास में। मैं तो मैसेज भेज भेज के थक गया हूँ व्हाट्सएप पे, ये ग्रुप में, लेकिन ये इसके शायद ये ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर रहा है, ये ग्रुप में पढ़ नहीं रहा, क्या वजह है। बहरहाल आप में से अगर कोई इसको जानता है हमजा जिया को, उसके पास नंबर है तो इसको पर्सनली बता दे भाई, इसको मैसेज भेज दो खुद, वरना ये आज किसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। ओके, वी आर डूइंग एक्चुअली सिंपल क्वेश्चंस। हम सादा क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस। ज्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चन फिलहाल इसमें हमारा टारगेट नहीं है। इस एक्सरसाइज में भी जो आसान आसान है वो हम कर रहे हैं, जो मतलब ये कहलाते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच द वेरिएबल हैज पावर वन only, the variable has power 1, those are called the linear equations. Variables means x, y, z, etc. They have power 1, so they are called the linear equations. And single variable, that means only एक ही वेरिएबल हो, x हो सिर्फ, या x y ना हो, या तो सिर्फ x हो, सिर्फ y हो, सिर्फ z हो, there should be only one variable. So we are doing the linear equation in one variable. तो बाकी क्वाड्रेटिक वगैरह हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 4x into x minus 2 into x minus 2 equal to 0. Question number 7. So this is equal to 0, and on the left side there are three products. On the left side there are three products: 4x, x minus 2, x minus 2. There are three products, three factors on the left side. They are being multiplied. On the right side is 0. So I have already told you, when there are some factors and answer is 0, it means either one of them is 0, the second one is 0, or the third one is 0. कोई एक इसमें से 0 होगा तो वो 0 हो सकता है इसका आंसर. If there is any one of them is 0, then you will get the answer 0. Otherwise, in multiplication, you will never get 0. मल्टीप्लीकेशन में कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा, सिर्फ उस सूरत में कि जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से कोई एक 0 हो. तो इधर दिस वन इज 0, और दिस वन इज 0, और दिस वन इज 0. So first we take either 4x equal to 0. So x will be equal to 0 upon 4. So x equal to 0. Must remember, we can divide 0 by any number. We can divide 0 by any number and we will get the answer 0. But any number cannot be divided by 0. 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है और आंसर हमेशा 0 आएगा, लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता. If you have the four things and you are asked to divide into 4 into 0 people, you have 4 rupees, you have $4, you have 4 things, and you are asked to divide into 0 people, so you can't divide. If you are asked to divide in 1 people, so you can give all the all the money
to one person. But you can't divide by 0. You can't divide among the 0 people. That is wrong. But 0 can be divided into 4 or 5 or 6, any number. 0 है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप चाहें कि सबको मैं 10 आदमियों को डिवाइड कर दूं उसको, तो वो सबको 0 0 ही मिलेगा. तो 0 divided by any number, answer always be 0. But remember, any number cannot be divided by 0. That is mathematically wrong. अगर आप कैलकुलेटर में इस तरह करेंगे तो एरर देगा, उसका कोई आंसर नहीं देगा. लेकिन अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0. सर वो इन्फिनिटी हो जाएगा ना फिर. इन्फिनिटी का क्या मतलब है? इन्फिनिटी क्या होता है? कभी ना खत्म होने वाला. नथिंग. इन्फिनिटी मीन नथिंग. जी सर. इन्फिनिटी मतलब 0. नहीं नहीं, इन्फिनिटी मतलब 0 नहीं तो होता. ये हमने किया इधर 4x equal to 0, so answer is 0. Or x minus 2 equal to 0, so x will be equal to 2. The third factor, or x minus 2 equal to 0, again you will get answer 0 and answer 2. So there are three answers: x is equal to 0, 2 and 2. Hussain Nazim. Okay, so that was the question number 7. Now I am doing another question. Question number, we'll do question number 15. X upon 3 minus x upon 2 is equal to 2 upon 3, the fraction question. Question number 15. X upon 3 minus x upon 2 is equal to 2 upon 3. First of all, we will remove the fraction. We will make it simple. So right side पे सब दो terms है, we will make them simple. On the left side there are two terms in fraction. We will make them simple by taking the LCM, as I have already told you in the previous class. और right side पे तो एक ही fraction है, there is no need to further simplify. So we will simplify. We will take the LCM, and on the right side will be remain as it is. What is the LCM of 2 and 3? Will be 6. Wajia Asif. Wajia Asif. Okay. So LCM will be 6. LCM 3, 2. First of all, we'll try to divide by 2. Yes, one number is being divided by 2. This cannot be divided this one. Now again try by 2. No. Now by 3. Yes, 3 ones are 3. So LCM will be 2 into 3 will be 6. So LCM is 6.
LCM is 6. We will multiply x by 3, x upon 3 by 6. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So 2 into x will be 2x minus x over 2 is multiplied by LCM 6. 2 1s are 2, 2 3s are 6. 3 into x will be 3x. You have this one. 2x minus 3x upon 6 is equal to 2 upon 3. Okay. Simplify 2x minus 3x will be minus x upon 6 is equal to 2 upon 3. Now cross multiply. 2 is multiplied with 6. 3 is multiplied with x minus x. So 3 into minus x will be minus 3x. 6 into 2 will be 12. Minus 3x is equal to 12. Now divide by minus 3. So x will become 12 divided by minus 3. 3 1s are 3, 3 4s are 12. So plus upon minus will be minus 4. Answer is x is equal to minus 4 is the answer. So in such type of question, first we take the LCM and do in this way simplify this one, or the other cases are we take the LCM of all the three fractions, all the three denominators, and multiply all by the LCM. This is one method. We take the right side, simplify separately, and the left side separately. This left side is simplified separately. The answer is x up minus x upon 6. And the right side is 2 upon 3. There is only one fraction. There is no need to simplify further. Let cross multiply, and then we found the answer. The other method is we take the LCM of all the fractions, whatever be the fraction in the equation. सर क्वेश्चन नंबर 12 भी करा दें एक दफा, जी कंफ्यूजन हो रही है उसमें. क्या क्वेश्चन नंबर 12 क्या है 12 में? We will take the LCM 3 2 3. All the fractions what are inside in the equation. 3 2 3. First we'll try by 2. Yes, one number is being divided by 2. This is not divided, this is divided, this is not divided. Now we will divide by 3. 1 comma 1 comma 1. So LCM will become 2 into 3. That is 6. Now all the fractions are multiplied by 6. 6 multiplied by x upon 3 minus 6 multiplied by x upon 2, 6 multiplied by 2 upon 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6. 2 1s are 2, 2 3s are 6. 3 1s are 3, 3 2s are 6. 2 into x will be 2x minus 3 into x will be 3x. 2 into 2 will be 4. 2x minus 3x is equal to 4. So 2x minus 3x will be minus x.
is equal to 4. So we have to find the answer of not minus x. We have to find the answer of plus x. Always when you are going to solve the equations, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो आपने माइनस एक्स या माइनस वाई या माइनस जेड की वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड की वैल्यू निकालनी है हमेशा। तो माइनस को पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे? विल चेंज द साइन, दिस वन एंड दिस वन, बोथ द साइड्स विल चेंज द साइन. It will become x, it will become minus 4. So answer is x is equal to minus 4. आंसर आ गया हमारे पास, x is equal to minus 4. तो एक तरीका यह है कि सबका एलसीएम निकाल ले, सब फ्रैक्शन का, वेदर दे आर ऑन द लेफ्ट साइड और दे आर ऑन द राइट साइड, सबका एलसीएम निकाल ले डिनोमिनेटर्स का, और फिर उसके आप सबको मल्टीप्लाई कर दें तमाम फ्रैक्शंस को, तो वो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, दिस विल नॉट बी इन फ्रैक्शन, और उसको फिर सॉल्व कर ले. तो सर दोनों मेथड कर सकते हैं ना? कोई भी एक मेथड, कोई भी एक? तो हाँ, दोनों जरूरी नहीं है, हाँ कोई भी एक कर लेंगे. कोई भी एक कर लेंगे. तो अब आप कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 12. हर क्वेश्चन बेटा यहाँ हम कर नहीं सकते, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता. ये भी हम जो कर रहे हैं ये अभी तो पिछले वीक का काम था जो हम आज निपटा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 12, x plus 2 whole square plus x minus 2 whole square equal to 0. अच्छा, ये दो फ्रैक्शन नहीं है, दो फैक्टर्स नहीं है. अगर यह प्लस ना होता, मल्टीप्लाई होता, तो हम सिंपल कर लेते, दिस इज इक्वल टू 0, और उसमें से x का आंसर निकालते, फिर दिस इक्वल टू 0 और x का आंसर निकाल लेते. बट दिस इज नॉट द केस ऑफ दैट. ये फैक्टर्स नहीं है, ये ऐड हो रहे हैं. ये क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं. हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे. So x plus 2 whole square will be a plus b whole square का फार्मूला यूज करेंगे. x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 into x into 2. 2 into x into 2 will be 4x plus b square, that means the square of 2, that is 4. और इसको ब्रैकेट में करते हैं, फिर प्लस इसको भी इसी तरह करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ये भी a स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab, माइनस 2 into x into 2 will be minus 4x, and then plus b square, 2 का स्क्वायर 4 equal to 0. सर माइनस आएगा ना? कहा? इसको ओपन करें, ब्रैकेट्स को ओपन करें. सर ये फॉर्मूले की हिंट भी लिख देंगे सर. 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस स्क्वायर नहीं आएगा 4 के बाद? नहीं बेटा, नहीं आएगा ना सर. फॉर्मूले में तो माइनस है, क्यों माइनस वाला गलत फॉर्मूला है, तुम्हारे लगाया? फार्मूले में गलत है. प्लस 4x और माइनस 4x will be cancelled out 0. Plus 4 and plus 4 will be 8 equal to 0. Now 8 will be shifted on the other side. 2x square is equal to minus 8. Plus 8 will go on the other side, it will become minus 8. 2 से divide कर दे, x square will be minus 8 upon 2. 2 under 2 4 are 8. X square is equal to minus 4. x स्क्वायर की वैल्यू आई है, x की निकालने के हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे. x will be equal to plus minus अंडर रूट माइनस 4. तो माइनस 4 का अंडर रूट नहीं निकल सकता, माइनस के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता भाई, याद रखिए. दे आर द
अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए सो दे आर द इमेजिनरी नंबर, उनका स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये -4 को हम यूं लिख सकते हैं 4 इंटू -1 या -1 इंटू 4, जैसा भी कर ले। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बाहर, तो प्लस -2 और अंडर रूट -1 अंदर रहेगा। तो माइनस के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं आता, पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट हुआ करते, याद रखिए। द स्क्वायर रूट ऑलवेज बी ऑफ द पॉजिटिव नंबर, नॉट द नेगेटिव नंबर्स। वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए सो दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर, दैट कैन बी इमेजिन्ड ओनली, दे आर नॉट रियल। तो याद रखिए -4 का स्क्वायर रूट नहीं होगा। -4 का हम फैक्टर बना सकते हैं, -1 इंटू 4 या 4 इंटू -1, कुछ भी आप इसको कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले लिखे, ये पहले लिखे। तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और -1 अंदर ही रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x इज इक्वल टू +-2 अंडर रूट -1। x इज इक्वल टू +-2 अंडर रूट -1। सर फॉर्मूला लिख दे वो दोनों प्लस माइनस। कौन सा फार्मूला बेटा, कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां अगर माइनस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा बस। सर आपने -1 के साथ लगाया है, हम 4 के साथ नहीं लगा सकते माइनस? 4 के साथ तो लगा हुआ है, तो देख नहीं रहा, कैमरा नीचे रखना। 4 के साथ तो लगा हुआ है ना बेटा, आपको नजर नहीं आ रहा 4 के साथ लगा हुआ? नहीं, स्क्वायर रूट की बात कर रही हूँ, जब हम ये स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट ले में ही रहे है हैं। ना। स्क्वायर रूट मैंने क्या बताया आपको, माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकलता बेटा, माइनस नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं हुआ करता। हमने उसको पॉजिटिव में करके अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना नहीं, उसका स्क्वायर रूट नहीं सर निकलेगा। ये हम स्क्वायर रूट जो डाल रहे हैं तो ये हमें उसके ड्राइव फॉर्म लिखना जरूरी है यहाँ पे, 2 अंडर रूट -1। ये यहाँ तक कर जी ले, सही है। यहाँ तक कर ले काफी है, यहाँ तक भी जी सर कर वही मैं पूछ रहा, हाँ यहाँ मैं तक वही कर मैं ले पूछ रहा हूँ काफी सर। है, यहाँ तक कर ले तो अच्छा है। चलिए सर, ओके। ओके, नाउ विल डू द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। 16 सिंपल है, इसको आप वो करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कर लें। क्वेश्चन नंबर 17। याद रखिए नेगेटिव नंबर्स अगर स्क्वायर रूट में आ जाए उनका स्क्वायर रूट नहीं होता, उनको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करके तो कर सकते हैं। जैसे अब मैंने -4 को 4 इंटू -1 कर दिया तो 4 का निकल आया, -1 ऐसे ही रह गया, अलग कर दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 17। टू अपॉन एक्स माइनस 3/2x इक्वल टू 1, सॉरी यस इक्वल टू 1। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहां तो डिनोमिनेटर नहीं है तो हम डिनोमिनेटर नहीं लेते, उसका तो 1 है। डिनोमिनेटर ना होने का मतलब यह है कि देयर इज 1, डिनोमिनेटर इज 1। अगर कोई भी यहाँ नंबर है, 1 है, 4 है, 5 है, -3 है, -2 है, नीचे कुछ भी नहीं है, उसका होल नंबर है, तो इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर 1 है। ओके, so we will take the denominator of these two, LCM of these two denominators, x and 2x। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ये तो नहीं जा रहा, ये x आ गया, ये चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी x आ जाएगा। अब ये दोनों x से डिवाइड हो जाएंगे, x 1 जार x, x 1 जार x।
So LCM 2 into x, that is 2x. LCM हमारे पास 2x आ गया. अब हम सेकंड वाला मेथड यूज करते हैं. 2x इसको भी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2x multiplied by 2 upon x minus 2x multiplied by 3 upon 2x is equal to 2x multiplied by 1. सेकंड वाला मेथड हमने यूज किया. ये x कैंसिल हो गया. 2 2s are 4. ये 2x से 2x कैंसिल हो गया. 3 बचा. 2x into 1 will be 2x. 4 minus 3 will be 1 is equal to 2x. 2 से डिवाइड कर दें इधर. So 1 upon 2 is equal to x. ये 2 इधर ले आए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यहां आएगा दूसरी साइड पे तो डिवाइड हो जाएगा. So 1 upon 2 is equal to x. या हम यूज लिख सकते हैं x is equal to 1 upon 2. ये हमारे पास आंसर आ गया. x is equal to 1 upon 2 is the answer. तो ये हमने सेकंड मेथड यूज किया. x और 2x का हमने एलसीएम लिया. पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया. सो ये नहीं डिवाइड हो रहा, x रहा. ये 2 से डिवाइड हुआ, कैंसिल हो गया, सिर्फ x बच गया. अब ये x से डिवाइड हो रहे हैं तो 1 1 आ गया. 2 into x will be the LCM, that is 2x. 2x इसको भी मल्टीप्लाई किया, 2x को इससे भी मल्टीप्लाई किया, 2x को इससे भी मल्टीप्लाई किया. ये 2x से x कैंसिल हुआ, 2 बच गया. 2 into 2 will be 4. ये 2x का 2x पूरा पूरा कैंसिल हो गया. 2 से 2x से x 3 बचा. 3 1 जा 3. और ये 2x into 1 will be 2x. So 4 minus 3 will be 1 equal to 2x. 2 से डिवाइड कर दिया. So x is equal to 1 upon 2 is the answer. Okay. That was question number 17. अब हम 18 करते हैं. 18 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. कैमरा थोड़ा नीचे कर ले. जी कैमरा. Question number 18. Four x into x minus 4 into x plus 3.8 upon x raised to power 4 minus 4x cube plus 7x square minus 5x plus 102 is equal to 0. ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो ये इस तरफ on the left side we have one fraction, on the right side we have one whole number. लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई फ्रैक्शन एक ही सिंगल फ्रैक्शन है, उसका एलसीएम के लिए जरूरत नहीं है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. होल नंबर है तो उसके नीचे 1 होता है. किसी भी होल नंबर के अगर नीचे नहीं है इसका मतलब होल नंबर के नीचे हमेशा 1 होता है. ये इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा 1 से. 1 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल रिमेन एज इट इज. वन जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा. और ये पूरा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0. तो याद रखिए कि 0 से कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई हो, 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, मिलियन हो, बिलियन हो, ट्रिलियन हो, जो भी हो, तो दैट विल बिकम 0. तो 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा.
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा एज इट इज आया।